Now today we will start with review. That is order 47 read with section 114 of CPC. Let us read first section 114 of CPC and then we will read order 47 rule 1. After that I will elaborate upon the concept. Section 114 talks about review and says, subject as aforesaid, any person considering himself aggrieved, mark the word considering himself aggrieved, A, by a decree or order from which an appeal is allowed by this code but from which no appeal has been preferred, मतलब अपील अलाउ है पर अपील प्रेफर नहीं की गई है. B, by a decree or order from which no appeal is allowed by this court, or C, by a decision on a reference from a court of small cause may apply for review of the judgment to the court which passed the decree or made the order, and the court may make such order thereon as it thinks fit. एक चीज ध्यान रखिएगा, रिव्यू डिक्री का भी हो सकता है और ऑर्डर का भी हो सकता है. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑर्डर 47 रूल 1. Now order 47 rule 1 says application for review of judgment. Again it says the same thing. Any person considering himself aggrieved, mark that word, considering himself aggrieved, A, by a decree or order from which the appeal is allowed but from which no appeal has been preferred. B, by a decree or order from which no appeal is allowed, or C, by a decision under reference from a court of small cause, and woo, अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा लिखा है, and woo from discovery of new and important matter or evidence, mark this line, discovery of new and important matter of evidence, which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of record, mark these words, some mistake or error apparent on the face of record, this is the second ground, or for any other sufficient reason, this is the third ground, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for review of the judgment to the court which passed the decree or made the order. तो आपको तीन ग्राउंड्स मिलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, सेकंड एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, थर्ड इज सफिशिएंट रीजंस, अदर सफिशिएंट रीजंस. ठीक है. Then rule 1 further reads, any party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party, except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when being respondent he can present to the appellate court the case on which he applied for review. ये बेसिकली ये बता रहा है आपको कि मान लीजिए एक केस में जो डिफेंडेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं और डिक्री उनके खिलाफ आ जाती है, उनमें से एक डिफेंडेंट अपील पे जाता है और दूसरा डिफेंडेंट अपील पे नहीं जाता है. तो ये उस दूसरे डिफेंडेंट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है कि भाई एक डिफेंडेंट अगर अपील पे चला भी गया तो उससे ये मैटर नहीं करता, आप तब भी रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कौन सा डिफेंडेंट अप्लाई कर सकता है फॉर रिव्यू? वो हैज़ नॉट फाइल्ड एन अपील. तो इससे नहीं मैटर करेगा कि दूसरे डिफेंडेंट ने अपील फाइल कर दी तो अब उसका भी राइट चला गया. नो, इट वोंट मैटर. एक डिफेंडेंट ने अगर अपील फाइल कर दी, अब वो अपील पेंडिंग है, पर जिस पार्टी ने अपील नहीं फाइल की, जिस डिफेंडेंट ने अपील नहीं फाइल की, वो अभी रिव्यू फाइल कर सकता है. ठीक है, वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है. सो दैट इज व्हाट दिस सब रूल इज सेइंग. इट इज सेइंग दैट एनी पार्टी हु इज नॉट अपीलिंग फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर may apply for the review of judgment notwithstanding the dependency of an appeal by some other party. अब एक exception देते हैं, except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant. ये exception का ध्यान रखिएगा. And the appellant, or when being respondent, he can present to the appellate court the case on which he applied for review. तो जो exception है वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए grounds दोनों के similar हैं, ग्राउंड्स जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उनके बीच सिमिलर हैं और उसी ग्राउंड पे अपील फाइल हुई है, तब आप रिव्यू नहीं फाइल कर पाएंगे. ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का ध्यान रखिएगा.
इससे पहले जो रूल लाइन बोल रहा है वो जनरल रूल बोल रहा है. वो कह रहा है पार्टी हु इज नॉट अपीलिंग फ्रॉम अ डिक्री मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ अ जजमेंट नॉट विथस्टैंडिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील बाय सम अदर पार्टी. ठीक है, सिर्फ उसी सर्कमस्टेंसेज में जो जिस पार्टी ने अपील फाइल नहीं की है, इट विल बी बार्ड फ्रॉम फाइलिंग द रिव्यू only in those circumstances where there is commonality of grounds between him and the other defendant which has filed the appeal. ठीक है, if there is existence of commonality of grounds, एक ही grounds पे मैटर फिक्सेटेड है, तब आप रिव्यू के लिए रिव्यू फाइल नहीं कर सकते. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. The fact that the decision on a question of law on which the judgment of the court is based has been reversed or modified by a subsequent decision of the superior court in any other case shall not be a ground for review of such judgment. अब मैं जरा कंसेप्ट की बात करता हूँ. ठीक है, कि रिव्यू का कंसेप्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. अब देखिए, रिव्यू का सब्सटेंशिव राइट दिया गया है आपको सेक्शन 114 रेड विद ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी. ऑर्डर 47 आपको प्रोसीजर बताता है और सब्सटेंशिव राइट आपका किधर है, सेक्शन 114 में. अब देखिए, जनरल रूल क्या होता है कि वंस द कोर्ट हैज पास द जजमेंट, ठीक है, इट हैज पास द जजमेंट, साइंड इट एंड प्रोनाउंस्ड इट, देन ही बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो. ठीक है, ही हैज नो जुरिसडिक्शन टू ऑल्टर इट. देन एक बार जज ने जजमेंट साइन करके प्रोनाउंस कर दिया, देन द कोर्ट विल बिकम फंक्टस ऑफिशियो. ठीक है, फंक्टस ऑफिशियो का मतलब होता है ही सीजेस टू हैव कंट्रोल ओवर द मैटर. मैटर डिसाइड हो गया, मैटर फाइनली सेटल हो गया, अब आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. सो वंस अ जजमेंट और ऑर्डर इज फाइनल, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और चेंज्ड. अब इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है रिव्यू. ठीक है, और ये सीरियस स्टेप माना जाता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट रिव्यू ऑफ द जजमेंट is a serious step and the court very reluctantly resort to this provision. Okay, whenever the court is invoking its power under review, the court is not exercising this power liberally, it reluctantly resorts to it. Okay, and when does it resort to it? It resorts to it when there is a glaring omission, patent mistake, or a grave error has crept into the earlier judicial proceedings because of जुडिशियल फैलिबिलिटी. अब देखिए, एक प्रिंसिपल है जो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, बताते हैं कि टू अ इज ह्यूमन एंड सिंस जजेस आर ह्यूमंस दे कैन ऑल्सो मेक एन एरर. है ना. तो जब कोई ऐसा एरर है जो इस लेवल का है जिसको क्योर होना चाहिए, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस विल सफर, तभी कोर्ट रिजॉर्ट्स टू रिव्यू. ठीक है, बड़े लिबरली नहीं रिव्यू के लिए एक्सरसाइज करता, वो रिव्यू वही तभी एक्सरसाइज करेगा व्हेन द मैटर इज कवर्ड अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 रेड विद सेक्शन 114. दैट इज कि कोई ऐसा एविडेंस था जो आप पहले विदाउट ड्यू डिलिजेंस नहीं ला सकते थे. वो एविडेंस इस नेचर का होना चाहिए कि अगर उसको कोर्ट कंसिडर करे देन इट कैन ऑल्टर द जजमेंट. सेकेंडली, देयर इज सम मिस्टेक और एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. And thirdly, for some other sufficient reason. जो ये जो term है other sufficient reason, it has to be construed analogous to the earlier two things that has been written in order 47 rule 1. That is new and important evidence or error apparent on the mistake on record. So it will be construed ejusdem generis. ठीक है. So you might be wondering that why the court reluctantly resorts to it. The answer is fairly simple. The court has gone through the long drawn and arduous process of the entire judicial proceedings right up to the level of judgment. Right? One of the parties is now successful, either the plaintiff is successful or defendant is successful. The court has heard the parties, the court has considered the evidence, the court has appreciated the evidence, the court has then finally considered every other thing that may arise in the litigation, and then it has passed a judgment. Okay, so to interfere with this judgment, which is the result of such a long drawn arduous process, would be considered
एज अ वेरी सीरियस मैटर, ठीक है। अब इससे डॉकेट लोड बढ़ता है, पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन बढ़ती है, और जो पार्टी सक्सेसफुल है उसके राइट्स अब अफेक्ट होंगे। इवन दो द जजमेंट हैज बीन पास्ड इन हिज फेवर, उसके बाद भी अगर रिव्यू हो रहा है तो उसके राइट अफेक्ट भी होंगे, है ना। रिव्यू हो रहा है जजमेंट, इसका मतलब क्या, प्रोसीडिंग थोड़ी और प्रोलॉन्ग होने वाली है, और हो सकता है कि जो राइट्स उसके क्रिस्टलाइज हुए थे अब वो चेंज या ऑल्टर हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी रिस्क रहता है। सो दैट इज वाई दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी सीरियस रेमेडी, है ना। तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि आप खुद ही सोचिए, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट डाला, नोटिसेस, इंटरोगेटरी, एडमिशंस, एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, सारी चीज़ें हो गई, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। जज ने उसके बाद सब कंसिडर करने के बाद जजमेंट लिखा। अब बस क्या, अगर रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल होने के बाद अगर ये सारी प्रोसीडिंग फिर से करनी पड़े हैं और फिर जजमेंट को सेट असाइड होना पड़े, तो फिर आप क्या कहेंगे कि भाई इतनी मेहनत किस लिए की मैंने, है ना। तो दैट इज वाई रिव्यू is considered as a serious remedy. It is an exceptional remedy जो ordinarily the court ought not to resort to unless the matter falls within the ambit of Order 47 Rule 1 read with Section 114, ठीक है। Order 47 Rule 1 में प्रोसीजर है, सब्सटेंशियल राइट आपका सेक्शन 114 में है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, लॉ का प्रिंसिपल ये है कि एक बार जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है और या कोई फाइनल ऑर्डर मेक हो जाता है तो कोर्ट फंक्टस ऑफिशियो बन जाता है। इट मींस ही हैज नो कंट्रोल ओवर द मैटर राइट नाउ। अब उसके पास मैटर पे अब कंट्रोल नहीं रह गया है। नाउ द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज ड्राइंग अप ऑफ अ डिक्री एंड एग्जीक्यूटिंग इट। उसमें दिमाग नहीं लगाना है, जितना दिमाग लगाना था वो जजमेंट से पहले तक लगाना था। तो कोर्ट हैज बिकम फंक्टस ऑफिशियो। अब फंक्टस ऑफिशियो बनने के बाद जब वो वापस रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो ये सीरियस मैटर माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी सीरियस स्टेप। So ordinarily court ought not to resort to Order 47 Rule 1, ठीक है, because it is an exceptional remedy. इसको liberally construe नहीं करते। रिव्यू में तभी मैटर जा सकता है जब रिव्यू के ग्राउंड सेटिस्फाई हो रहा हो, ठीक है। अभी मैं उन ग्राउंड्स पे भी इलैबोरेट करूंगा, लेकिन पहले ये आपको समझना जरूरी है कि कोर्ट फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है। एक बार फाइनल जजमेंट और ऑर्डर पास हो गया और प्रोनाउंस हो गया, फिर जब रिव्यू पे रिजॉर्ट कर रहा है कोर्ट तो वो सीरियस रेमेडी मानी जाती है, सीरियस स्टेप माना जाता है। इट हैज द इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्गिंग द प्रोसीडिंग्स, इट हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशंस। आप जानते हैं जुडिशरी पे कितना डॉकेट लोड है। सिमिलरली इट माइट हैव एन इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है। अर्लियर जजमेंट में राइट ऑफ द पार्टीज फाइनलाइज हो चुके थे, अगर रिव्यू हो रहा है तो इसमें राइट्स ऑल्टर हो सकते हैं, तो ये भी रिस्क रहता है उसमें। सो दैट इज वाई रिव्यू इज कंसिडर्ड एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, एंड रिव्यू इज नॉट अकिन टू द अपीलेट पावर। ये अपील की तरह नहीं होता है। अपील में जो अपीलेट कोर्ट की जो पावर्स होती हैं वो काफ़ी वाइडर होती हैं। रिव्यू के जो ग्राउंड्स हैं ये नैरो हैं, दीज आर नैरो ग्राउंड्स। आपने खुद ही अभी सुना, पहला है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट एविडेंस, और ये न्यू और इम्पॉर्टेंट एविडेंस उस नेचर का होना चाहिए कि अगर अर्लियर प्रोसीडिंग में दिख जाता देन इट वुड हैव द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द जजमेंट। ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो जजमेंट ऑल्टर कर सकता, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या है, मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, इस पर भी इलैबोरेट करूंगा। थर्ड ग्राउंड इज अदर सफिशिएंट रीजंस, जिसको आपको इजस्डम जेनरिस कंस्ट्रू करना है, ठीक है, मतलब इन रेफरेंस टू दी अदर टू ग्राउंड्स दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर ऑर्डर 47 रूल 1। अब एक चीज का ध्यान रखिए, राइट ऑफ रिव्यू is both substantive as well as procedural in nature। मतलब अगर लॉ ने आपको राइट ऑफ रिव्यू या लॉ ने कोर्ट को एम्पावर नहीं किया है रिव्यू के लिए, then in that situation review is not available to you। That is why like in appeal, right of review is both substantive as well as procedural in nature। It is substantive right because it has to be conferred by law either expressly or by necessary implication। There can be no inherent right of review, so you cannot exercise your inherent power under section 151 to review the final judgment or order। Then it is procedural
it is also procedural in nature. मैंने अभी बताया था ना, it is both substantive and procedural in nature. It is also procedural in nature because every court or tribunal can correct an inadvertent error which has crept in the order, either due to procedural defect or mathematical or clerical error, or by misrepresentation or fraud of the party to the proceeding, which can be corrected ex debito justitiae. Ex debito justitiae का क्या मतलब होता है? In furtherance of justice, या उसका आप दूसरा ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. अब एक और चीज का ध्यान रखिएगा, और मैं बार बार इसको रिइटरेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. पावर ऑफ रिव्यू को कभी भी एपेलेट पावर से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है? द पावर ऑफ रिव्यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एपेलेट पावर्स which enable the appellate court to correct all the errors committed by the subordinate court. Right? Review cannot be equated with the original hearing of the case, and the finality of the judgment by a competent court cannot be permitted to be reopened or reconsidered unless the judicial view is manifestly wrong. ठीक है? मतलब रिव्यू के जो नैरो ग्राउंड्स हैं उनमें फॉल करता है तो रिव्यू हो सकता है, अदरवाइज रिव्यू नहीं हो सकता. उसको एपेलेट पावर से कंफ्यूज मत करिएगा. एपेलेट पावर्स आर मच मच वाइडर, दे आर मच वाइडर इन नेचर देन योर रिव्यू. ध्यान रखिएगा, ठीक है? एपेलेट पावर्स आर मच मच वाइडर देन रिव्यू. तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिव्यू? ऑलवेज रिमेंबर दैट this remedy of review has been borrowed by courts in India through courts of equity. ये पहले courts of equitable jurisdiction ये power of review exercise करते थे. common law courts अपने judgment review नहीं करते थे पहले. India में courts are both of law and equity. That is why this power has been conferred upon us. ठीक है? ये power जो है ये confer की जाती है, ये inherent power का part नहीं है. So the basic philosophy inherent in recognition of doctrine of review is acceptance of human fallibility. If there is an error due to human failing, it cannot be permitted to perpetuate and to defeat justice. Such mistake or errors must be prevented or corrected to prevent miscarriage of justice, because courts exist for the purpose of doing justice above all. It is a virtue which will transcend all the barriers, and neither the rules of procedure nor technicalities of law can come in its way. ठीक है? The law has to bend before justice. अब देखिए, इसको कहा बहुत अच्छे ढंग से जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा लिबरली कंस्ट्रू नहीं करेंगे, इनको बहुत नैरो ग्राउंड्स पे रखा जाता है. The power of review is limited to very narrow grounds that has been mentioned therein. वो अलग बात है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके जो रिव्यू की पावर्स हैं दे आर मच मोर वाइडर. लेकिन आप तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का पेपर दे रहे हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट को समझना चाहते हैं, उनके ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू आर नैरोअर. रिट कोर्ट्स की जो पावर ऑफ रिव्यू है दे आर मच वाइडर देन योर्स. ऑफ कोर्स ही होंगी, आपको तो इतना ध्यान ही होगा. अब हम जरा प्रोविजन का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, विद प्रिसिशन. तो पहले जो शब्द हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए वो ये है, अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड. अब आपने एक चीज गौर की कि लेजिस्लेचर ये नहीं कह रहा है अ पार्टी कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड, इट इज सेइंग अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीड. तो भैया ये कौन से पर्सन है? देखिए, एनी पर्सन who has a legal grievance or against whom a decision has been pronounced, or he has been wrongfully deprived of something, or wrongfully refused something, or wrongfully the judgment affects his title, then he can be said to be a person aggrieved. तो एक लाइन का टेस्ट होता है पर्सन अग्रीव्ड के लिए, वो क्या है? वो ये है कि is the person affected or prejudiced by judgment or order of the court? If the answer is yes, then he will fall into the category of person aggrieved. If the answer is no, if the order does not bind him, if the proceeding does not affect him, if the decree does not affect him, then he cannot apply for review. He is not a person aggrieved. ठीक है? जो भी एडवर्सली अफेक्ट होता है वही पर्सन एग्रीव्ड की कैटेगरी में जा सकता है. अब आपको एक और चीज बताता हूं कि लेजिस्लेचर ने यहाँ पे
पार्टी अग्रीड क्यों नहीं यूज किया? पार्टी अग्रीड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि पार्टी अग्रीड सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तक कन्फाइंड हो जाता। पर्सन अग्रीड इसलिए यूज किया कि लेजिस्लेचर ने ये सोचा कि अगर कोर्ट हो सकता है कोई डिक्री ऐसी पास करे जो किसी थर्ड पर्सन या स्ट्रेंजर टू द सूट को अफेक्ट करे, तो अगर स्ट्रेंजर को वो अफेक्ट कर सकती है तो यहाँ पे ये प्रॉपर होगा कि वी राइट द वर्ड्स एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड रादर देन अ पार्टी कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड। तो क्योंकि अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में अ थर्ड पर्सन इज प्रिजुडिशियली अफेक्टेड बाय द डिक्री और द डिक्री affects the rights of the third party in one way or the other, then he can seek review. तब वो review को seek कर सकता है। तो that is why the legislature has used this word any person considering himself aggrieved rather than any party considering himself aggrieved, क्योंकि पार्टी अगर कह देता तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ही आते उसमें, ठीक है। तो इट इज मच वाइडर इन स्कोप, ये टर्म जो है इट इज वाइडर इन स्कोप, लेकिन इतना भी वाइडर नहीं कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अफेक्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और इस तरीके से अफेक्ट होना चाहिए कि इट अफेक्ट्स हिम एडवर्सली और प्रिजुडिशियली। तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी अप्लाई कर सकती है रिव्यू के लिए। तो जब आपसे कोई पूछे कि कैन अ थर्ड पार्टी अप्लाई फॉर अ रिव्यू, देन योर आंसर शुड बी yes, he can apply for a review only when he's affected by the decree in one way or the other directly or the decree prejudicially affects his right। यहाँ पे मैं A वाला effect यूज कर रहा हूँ, E वाला नहीं, AFFECT, ठीक है, affect। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि रिव्यू के लिए कुछ और कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब पहला ये है कि अपील अगर लाए करती है, मान लीजिए लॉ अपील अलाउ करता है तो अपील प्रेफर नहीं की गई है, ठीक है। अब इस पे थोड़ा एलैबोरेशन कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से। ये बेसिकली इस बात की बात कर रहा है कि अगर अपील लाई करती है देन यू शुडंट अप्लाई फॉर दैट अपील, ठीक है, तभी आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपील के लिए अप्लाई कर दिया और उसके बाद आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। आपको सीधे रिव्यू के लिए अप्लाई करना है इफ यू वांट टू हैव द बेनिफिट ऑफ रिव्यू, ठीक है। अब कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी है कि कोर्ट आपसे ये नहीं कह सकता कि देखिए आपकी मेरे जजमेंट से अपील लाई करती है, आप आपकी अपील क्यों नहीं फाइल कर रहे। दिस कैन नॉट बी सेट बाय द कोर्ट। So the fact that an order or judgment is subject to appeal is no ground to reject an application for review। ये बात याद रखिएगा। पर अभी इसमें एक टेक्निकलिटी है, जरा मैं अभी आपको बताता हूं। तो आप रिव्यू के लिए कब कब नहीं अप्लाई कर सकते, अब मैं टेक्निकलिटीज बता रहा हूं। पहले दो चीज सिंपल है, तीसरी चीज कॉम्प्लेक्स है। पहला ये है कि आपने जब अपील ऑलरेडी फाइल करके रखी है, ठीक है, आपने अपील के लिए अप्लाई कर दिया और अपील इज नाउ पेंडिंग, तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रिव्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी अपील प्रेफर होकर डिस्पोज ऑफ भी हो गई है तब भी आप रिव्यू के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन एक थर्ड सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए आपने रिव्यू की एप्लीकेशन पहले दे दी, यू हैव फाइल्ड फर्स्ट फॉर रिव्यू, देन यू फाइल्ड एन अपील, तब द रिव्यू पिटीशन इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। This was recognized by the Honorable Supreme Court in the case of Tungabhadra Industries Limited versus Government of Andhra Pradesh, AIR 1964, Supreme Court, पेज नंबर 1372। अब याद रखिएगा ये थर्ड सिचुएशन है, ये वो बात कर रही है कि आपने पहले रिव्यू फाइल किया, ठीक है, अब रिव्यू की एप्लीकेशन इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, उसके बाद आपने अपील फाइल की, ये कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि पहले अपील फाइल कर दी फिर रिव्यू फाइल कर दिया, दैट कैन नॉट बी डन। आप पहले रिव्यू फाइल कर सकते हैं तब अपील फाइल कर सकते हैं, दैट कोर्स इज ओपन टू यू। एक चीज याद रखिएगा, ये जो वर्ड्स है ना, फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड, इनको लिबरली कंस्ट्रू किया जाता है, इन वर्ड्स को लिबरली कंस्ट्रू किया जाता है। दैट इज व्हाई
दिस थर्ड कोर्स जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज ओपन टू यू. अब देखिए, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसमें प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो. देखिए, अगर मान लीजिए रिव्यू की एप्लीकेशन आपने पहले लगा दी और तब आपने अपील फाइल की, तो अगर रिव्यू ग्रांट हो जाता है, ठीक है, जजमेंट ऑल्टर हो जाता है, रिव्यू ग्रांट हो जाता है, तो आपका प्रीवियस जजमेंट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो अपील विल फॉल टू द ग्राउंड ऑटोमेटिकली. Conversely, if the appeal is decided first on merits before the appellate court and then the review is heard, तो रिव्यू का पिटिशन इनफ्रंक्टुअस हो जाता है ना, तब वो डिसमिस हो जाएगा. तो ऐसे में कोई म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है. आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप पहले रिव्यू फाइल करें, उसके बाद आप अपील फाइल करें. अपील पहले डिस्पोज ऑफ हो गई तो रिव्यू का पिटिशन इनफ्रंक्टुअस हो जाएगा. रिव्यू पहले डिस्पोज ऑफ हो गया तो वो जजमेंट ही नहीं रहेगा जिसके बेसिस पे आपने अपील फाइल की थी. देन द अपील विल फॉल टू द ग्राउंड, है ना. अपील तो आप उस जजमेंट पे फाइल करते हैं, उस बेसिस पे फाइल करते हैं जो एग्जिस्टेंस में था. जब रिव्यू हो गया तो नया जजमेंट होगा. अर्लियर जजमेंट वुड बी सेट असाइड. अगर रिव्यू की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई, रिव्यू मान लीजिए आपका सक्सेसफुल हो गया, तो क्या होगा, द अर्लियर जजमेंट वुड नॉट बी इन एग्जिस्टेंस, hence appeal will fall to the ground automatically because the original decree or order will cease to exist. ठीक है, I think this should be fairly simple to understand. अब फर्स्ट ग्राउंड तो हो गया, सेकंड ग्राउंड पे आते हैं. बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड. ठीक है, तो ये तो फेयरली सिंपल है समझना कि जिस डिक्री और ऑर्डर से अपील नहीं अलाउ होती उसके लिए आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं. तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के डिक्री या ऑर्डर से अपील नहीं अलाउ करती, तो ऐसी सिचुएशन में रिव्यू इज कॉम्पिटेंट. थर्ड सिचुएशन है डिसीजन बाय अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज. सो अ जजमेंट ऑन रेफरेंस कैन बी रिव्यूड. अब ग्राउंड्स पे आ जाते हैं. तो 3 ग्राउंड्स आपको मिले हैं, ये नैरोली कंस्ट्रू होते हैं, याद रखिएगा. पहला, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस. दूसरा, मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड. और तीसरा, सफिशिएंट रीजंस, अदर सफिशिएंट रीजंस. अब एक एक करके इसको एलैबोरेट करते हैं. पहला है डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस. व्हाट डज इट मीन? अब देखिए, as a general rule you are aware that where a litigant has obtained a judgment in the court of justice, he is by law entitled not to be deprived of the fruits thereof without very strong reasons. Therefore, where a review of the judgment is sought by the party on the ground of discovery of fresh evidence, utmost care is to be exercised by the court in granting it, because it is very easy for the party who has lost the case to see that weak points in his case are filled, and he would be tempted to try and fill gaps by procuring evidence which will strengthen then weak parts of the case. जजमेंट में लिखा ही होगा कि किस बेसिस पे जज ने अग्री किया, तो जो दूसरा लिटिगेंट है वो सोच सकता है ओके ये मेरे वीक पार्ट्स हैं, चलो इस पे मैं एविडेंस प्रोक्योर कर लेता हूँ तो फिर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा. तो ये भी एक फाउल प्ले होता है जिसको द कोर्ट सीक्स टू अवॉइड. सो याद रखिएगा, ऑर्डर 47 रूल 1 इज नॉट इंटेंडेड टू गिव सेकेंड इनिंग्स to the party who has lost the case due to his negligence or indifference. अब सवाल उठता है कि जो एविडेंस है वो ऐसा होना चाहिए जो ड्यू डिलिजेंस से आप अर्लियर प्रोक्योर ना कर पाते. ठीक है, न्यू एग्जिस्टेंस में न्यू इंपॉर्टेंट मैटर अभी आया है या न्यू एविडेंस अभी डिस्कवर हुआ है, या वो ऐसा है जो ड्यू डिलिजेंस से आप अर्लियर प्रोक्योर कर ही नहीं सकते थे. अब उठता है सवाल कि एविडेंस क्या होना चाहिए, एविडेंस का नेचर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ एविडेंस. द आंसर इज वो उस नेचर का होना चाहिए कि पहला वो रेलेवेंट हो. ठीक है, पहला तो एविडेंस शुड बी रेलेवेंट. दूसरा कि अगर वो एविडेंस कोर्ट कंसिडर करता है देन इट माइट पॉसिबली हैव एन इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द जजमेंट, कि एविडेंस इस लेवल का है कि अगर जज ने उसे कंसिडर किया तो जजमेंट ऑल्टर करने की गुंजाइश है, सर्टेनिटी नहीं गुंजाइश है, तब द कोर्ट कैन ग्रांट द एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू. तब रिव्यू पे हियरिंग वो करेगा. तो मान लीजिए आपको, यू आर द प्लेंटिफ, आप हार गए केस. आपको याद है कि डिफेंडेंट जो है इसने एक बार एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी किया था और एडमिट किया था सारा. ठीक है, क्लेम एडमिट किया था, लेकिन एक बार इसने आपके यहाँ से अपना जो एक्नॉलेजमेंट था वो चुरा लिया.
अब आप केस हार गए, यू आर फीलिंग रिजेक्टेड। डिफेंडेंट क्या करता है, आपसे तफरी लेने के लिए या मजाक करने के लिए या जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मॉकिंग यू, वो आपके सामने वो एक्नॉलेजमेंट दिखाता है। अब उसको रिव्यू के प्रोविजन का पता नहीं था, आपको एक्नॉलेजमेंट दिखा रहा है, कह रहा है ये लीजिए, अब तो ये वर्थलेस हो गया। अब वो आपको मिल जाता है। ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए खो गया था या किसी और पर्सन के पास था और वो पर्सन आ गया और उसने अब वो एक्नॉलेजमेंट दे दिया है, लेकिन अब तो जजमेंट पास हो गया, अब क्या होगा? अब आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी है बाय द डिफेंडेंट, ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड ऑफ रिव्यू होगा, ठीक है। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड ग्राउंड ऑफ रिव्यू। सिमिलरली मान लीजिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हो गई है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हो गई है, एंड इट टर्न्स आउट कि पार्टीज जो हैं, बाद में जजमेंट पास होने के बाद और डिक्री पास होने के बाद पता चलता है जो पार्टीज हैं उनकी मैरिज इज वॉइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो उनको रेमेडी तो दी नहीं जा सकती। जब रेमेडी दी नहीं जा सकती, देन दिस वुड ऑल्सो बी अ गुड ग्राउंड फॉर रिव्यू। ऐसे में अगर मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन ले लीजिए, पार्टीज आर फर्स्ट कजन्स, फर्स्ट कजन्स की मैरिज नहीं हो सकती हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट में दे आर प्रोहिबिटेड रिलेशंस एंड सपेंड रिलेशंस, तो प्रोहिबिटेड रिलेशंस और सपेंड रिलेशंस में मैरिज नहीं हो सकती। तो अगर मान लीजिए टर्न्स आउट डिक्री पास होने के बाद, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास होने के बाद पता चलता है कोर्ट को कि पार्टीज आर कजन्स, दिस इज ऑल्सो अ गुड ग्राउंड फॉर रिव्यू। Because in either of the two scenarios that I just told you, discovery of new and important matter of evidence would be of such nature that it will have an effect of altering the judgment. ठीक है, there is a possibility that the judgment might be altered. But per contra, consider this: where the evidence or the new evidence or matter that has been obtained is of such nature that it is doubtful that even if produced would have an effect of altering the judgment, then the review will not be granted. अब इसके क्या illustration हो सकते हैं? अब इसमें ऐसा मानिए कि मान लीजिए a suit has been dismissed on two grounds. एक पार्टीशन सूट है कोर्ट के सामने and it has been dismissed on two grounds. जो पहला ग्राउंड है that is non-impediment of necessary party, ठीक है, first ground. Second ground is that the plaintiff is an illegitimate child and hence he is not entitled to judgment for the partition. मान लीजिए इन दो ग्राउंड्स पे डिसमिस्ड है। अब प्लेंटिफ वो एविडेंस ऑब्टेन कर लेता है जो वो दिखाता है कि ही इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है, कि ही इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड। अब इस ग्राउंड पे वो रिव्यू करवाना चाहता है, यहाँ पे रिव्यू की एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सूट दो ग्राउंड पे डिसमिस हुआ था। पहला था नॉन इम्प्लीटमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टी, तो अगर उसने नेसेसरी पार्टी को इम्प्लीट नहीं किया, फिर वो इतना दिखाना चाहता है कि इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड, दैट वुड नॉट बी अ ग्राउंड, दैट वुड नॉट बी अ सफिशिएंट ग्राउंड टू ग्रांट रिव्यू। दो सिचुएशंस की वजह से सूट डिसमिस हुआ था। एक सिचुएशन आप भले ही सेटिस्फाई कर दें, पर दूसरी सिचुएशन अगर नहीं सेटिस्फाइड है, यू विल नॉट बी ग्रांटेड रिव्यू, ठीक है। वैसे ही एक और इलस्ट्रेशन ले लीजिए कि मान लीजिए कि एक सूट था डैमेजेस के लिए, प्लेंटिफ वो सूट हार जाते हैं, नाउ ही सीक्स अ रिव्यू। अब वो अकाउंट बुक्स से कुछ एंट्रीज ला के इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिससे वो दिखाते हैं कि देखिए देखिए मेरी जो अकाउंट बुक्स थी उसमें मैंने लिख रखा है कि 50,000 मैंने डिफेंडेंट को दिए थे और डिफेंडेंट को मैंने 50,000 फॉर अ सर्टेन वर्क दिए थे विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसी कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने ब्रीच किया है। ये एक नया एविडेंस है जो मुझे अभी तुरंत मिल गया। तो कोर्ट बोलेगा कि देखिए एविडेंस आपको ये हो सकता है नया हो, पर ये इतने सब्सटेंशियल नेचर का नहीं है कि वो जजमेंट को अफेक्ट करेगा, सो हेंस रिव्यू इन दिस सिचुएशन कैन नॉट बी ग्रांटेड एज वेल, ठीक है। तो ये सिचुएशन इज ऑल्सो फेयरली सिंपल टू अंडरस्टैंड। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये सब्सटेंशियल नेचर का होना चाहिए, मतलब इट शुड बी ऑफ सच अ नेचर that if considered it might have an effect of altering the judgment. Similarly, per contra, if the evidence is of such nature that it is doubtful that if it is considered then it would have an effect of altering the judgment, then again review cannot be granted,
क्योंकि कोर्ट को डाउट है कि इवन इफ आई कंसिडर्ड इट इट वुड नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द जजमेंट इट इज डाउटफुल if it would have an effect of altering the judgment of course the review will not be granted on this situation. तो याद रखिएगा when you're considering the nature of the evidence you have to make sure that the evidence is of substantial nature and it was not known earlier. अब ये उस पार्टी के सेंट्रिक है. अब ये उस पार्टी का कंडक्ट भी देखेगा कोर्ट कि क्या ये ऐसा एविडेंस था जो इनको पहले नहीं पता था. और अगर मान लीजिए न्यूली अराइज हुआ है या मान लीजिए न्यूली अराइज नहीं हुआ है तो हैज़ द पार्टी एक्टेड विद ड्यू डिलिजेंस. अगर ड्यू डिलिजेंस वो एक्सरसाइज करती तो क्या ऐसा एविडेंस वो ट्रायल के दौरान प्रोड्यूस कर सकता था ओरिजिनल ट्रायल के दौरान. इफ द आंसर इज येस कि हैड ही एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस then such an evidence could have been procured earlier. तब रिव्यू ग्रांट नहीं होगा क्योंकि ड्यू डिलिजेंस इज अ नेसेसिटी. ठीक है इन द फर्स्ट ग्राउंड. तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा. ऑलराइट. अ नेग्लिजेंट पार्टी कैन नॉट अप्लाई फॉर रिव्यू. सेकेंड इनिंग्स उसे नहीं मिलते कि अगर आप यू वर नेग्लिजेंट इन प्रोड्यूसिंग योर एविडेंस, यू वर रेकलेस इन प्रोड्यूसिंग योर एविडेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रायल, then you cannot be allowed a second innings. ठीक है याद रखिएगा. अब सवाल उठता है what do you mean by the expression error apparent on the face of record. देखिए error apparent on the face of record बहुत सिंपल है. इसका मतलब है कि जैसे ही आप रिकॉर्ड को देखें सो विदाउट एनी एलैबोरेट आर्ग्यूमेंट आप सीधे बता सकें कि ये देखिए रिकॉर्ड, देखिए ये एरर है. राइट तो इट मीन्स एरर apparent on the face of record, जो पढ़ते ही पता चल जाए कि एरोनियस है. अगर किसी चीज का एरर एस्टेब्लिश करने के लिए आपको इलैबोरेट आर्ग्यूमेंट या डीप लॉजिक की जरूरत पड़े तो वो एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं होगा. ठीक है. जो सेकंड ग्राउंड है एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ये इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा एरर है जो रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद सेल्फ एविडेंट दिख जाएगा. ठीक है. इट वुड बी सेल्फ एविडेंट एंड it requires no extra examination or argument to establish it. Per contra, if it requires deep examination of the record, if it requires elaborate argument to establish it, then it cannot be said to be an error apparent on the face of record. ठीक है. To quote from the judgment of Tungabhadra Industries versus Government of Andhra Pradesh, the Honorable Supreme Court said, a review is by no means an appeal in disguise whereby an erroneous decision is reheard and corrected, but lies only for patent errors. Error apparent on the face of record को patent errors भी कहते हैं. We do not consider that this furnishes a suitable occasion for dealing with the difference exhaustively or in any great detail, but it would suffice for us to say that where without any elaborate argument one could point out to the error and say that here is a substantial point of law which stares one in the face, and there could reasonably be no two opinions entertained about it, a clear case of error apparent on the face of record would be made out. अभी आपको एक illustrative list देता हूँ कि what has been held to be an error apparent on the face of record. First is pronouncement of judgment without taking into consideration the fact that law has been amended retrospectively. सेकेंड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अ स्टैट्यूट, that will also be considered as an error apparent on the face of record. स्टैट्यूट कुछ कह रही है, जजमेंट ठीक उसके ऑपोजिशन में, that is an error apparent on the state of record. Other is without considering the statutory provisions or on the ground of omission to try a material issue in the case, or on the ground that the court decided against the party on a matters which is not an issue, or where the judgment is pronounced without notice to the parties, or where there is a want of jurisdiction and it is apparent on the face of record. ठीक है. or taking a view contrary to the law laid down by the Supreme Court. These are the cases where error is apparent on the face of record. Then there is an illustrative list which I can narrate to you where the error is not considered to be apparent on the face of record. First is erroneous decision on merits, or erroneous view of the law, or the fact that the other high court has taken a different view on the question, or that a different conclusion would have been arrived at had the matter been considered differently,
or where the judgment is based on two or more grounds, each of which is sufficient to sustain it and any one of them is erroneous. तो इन सारे सिचुएशन में ये चीजें एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं कहलाती. ठीक. अब आता है सवाल एजस्टम जनरस कह रहा हूँ, अदर सफिशिएंट रीजन का. दिस हैज टू बी इंटरप्रेटेड एजस्टम जनरस. ठीक है. अब इसमें क्या क्या आ सकता है वो भी इलस्ट्रेटिवली बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड है ये काफ़ी लूज है, बट इट शुड बी कंस्ट्रूड एजस्टम जनरस. तो इसमें एक इलस्ट्रेटिव आइडिया दे देता हूँ. इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं कि वे द स्टेटमेंट इन द जजमेंट इज़ नॉट करेक्ट. मान लीजिए द स्टेटमेंट इन द जजमेंट इज़ नॉट करेक्ट, then it might be covered within that expression. Similarly, where the decree or order has been passed under a misapprehension of the true state of circumstances, it would be covered within that expression. The third situation under Order 47 Rule 1. Or where a party had no notice or opportunity to produce his evidence, or where the court has failed to consider a material issue or a material fact or a material evidence, or where the court has omitted to give notice or consider material statutory provisions, or a ground, the court has given the judgment on the ground which goes to the root of the matter and affects the inherent jurisdiction of the court, or the judgment has been given under a misconception, or where a party's evidence has been closed owing to misconception on the part of his pleader, or there is a manifest wrong that has been done and it is necessary to pass an order to do full and effective justice. ये सारी चीज़ें sufficient reasons की कैटेगरी में आ सकती हैं. पर क्या नहीं आ सकता? ठीक है. The following have been held to not be sufficient reasons for granting review. First is omission to frame an issue regarding the valuation of the suit. Second is negligence or inadvertence on the part of the party or his pleader. Then absence of the party on the date of hearing or on subsequent events. Then failure of the party or his pleader to raise a plea. Then that the case should have been argued differently, or the case should have been argued in such a way so as to enable the applicant to raise points which he could and ought to have raised at the former hearing, or where the review is sought on the ground that if the opportunity were given to the applicant to establish his case, he could prove that the judgment of the court is wrong, or that the case has been mismanaged by his counsel, or that the court took a different view in the subsequent case. These are the grounds that are not considered other sufficient reasons. ठीक है, इस पे आपको रिव्यू नहीं ग्रांट होगा. अब एक चीज याद रखिएगा, आपके पास कोई इनहेरेंट पावर एज अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, यू डू नॉट हैव एन इनहेरेंट पावर ऑफ रिव्यू. इनहेरेंट पावर ऑफ रिव्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है. लेकिन रिट कोर्ट्स जो हैं वो ये पावर ऑफ रिव्यू सुओमोटो एक्सरसाइज कर सकते हैं. यू कांट डू सो. आप सुओमोटो नहीं एक्सरसाइज कर सकते, आप सिर्फ एप्लीकेशन पे कर सकते हैं. रिव्यू की पावर यू कैन ओनली एक्सरसाइज ऑन एन एप्लीकेशन बाय द पार्टी. Since it is not an inherent power, review की power has to be conferred by a statute, and it is not an inherent power, hence you cannot exercise it suo moto. However, writ court can exercise this power of review suo moto. writ court में थोड़ी और भी चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी powers constitution से determined होती हैं, so they are much more powerful than you are. उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा वाइड हैं comparatively. ठीक है. अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से कोई भी कोर्ट सुओ मोटो रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, तो आंसर इज नो, इट कैन नॉट. सुओ मोटो एक्सरसाइज ऑफ पावर कैन ओनली बी डन बाय द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, जो कि रिट कोर्ट्स हैं. ठीक है, आप नहीं कर सकते. आप उसके लिए सेक्शन 151 को भी रिजॉर्ट नहीं कर सकते. लिमिटेशन पीरियड क्या होता है फॉर फाइलिंग रिव्यू? 30 डेज. ठीक है, आर्टिकल 124 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट देख लीजिएगा उस पर्पस के लिए. अब क्या एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज अपीलेबल? द आंसर इज येस. द ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज अपीलेबल, बट एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज नॉट अपीलेबल. ठीक है, याद रखिएगा. तो ये हो गए रिव्यू के सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स. अब हम लोग बड़े आराम से बाकी के प्रोविजन देख लेते हैं. जैसे फॉर्म फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू, सेम फॉर्म होगा अपील का, एंड म्यूटेटस म्यूटेंडस विल अप्लाई टू द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू.
ठीक है, बस ये है कि उसमें आप अपीलेट कोर्ट का नाम नहीं मेंशन करेंगे, आप उसी कोर्ट का नाम मेंशन करेंगे जिसने जजमेंट पास किया है, और फिर कुछ वैसे ही अमेंडमेंट्स रखेंगे जैसे कि आपको ट्रायल कोर्ट में रखने चाहिए। सब रूल कह रहा हूँ, रूल 4 कहता है एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, कहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अ रिव्यू, इट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ये फर्स्ट स्टेज है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर रिव्यू फाइल की, कोर्ट को लगता है देयर इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड, रिजेक्ट कर देगा सीधे, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, एप्लीकेशन ग्रांट हो गई, दिस इज द सेकंड स्टेज वेयर द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड and where the court is of the opinion that the application for review should be granted, it shall grant the same, provided that no such application shall be granted without previous notice to the opposite party to enable him to appear and be heard in support of the decree or order, a review for which it is applied for. And B, no such application shall be granted on the ground of discovery of new matter or evidence which the applicant alleges was not within his knowledge or could not be adduced by him when the decree or order was passed or made without strict proof of such allegation. Mark this, strict proof of such allegation, बड़ा strictly proof करना पड़ता है, so the burden of proof is higher, ठीक है, burden of proof is higher, so mark these words, strictly proof करने पड़ेंगे allegations, कि आप कह रहे हैं कि मैं ड्यू डिलिजेंस से अर्लियर वो एविडेंस नहीं ला सकता था, या आप कह रहे हैं दी न्यू एविडेंस वाज नॉट इन माय नॉलेज, तो आपको स्ट्रिक्टली प्रूव करना होगा कि इट वाज नॉट विद इन योर नॉलेज, और had you exercised due diligence you couldn't have produced that evidence earlier. तो प्रोवाइजो का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ग्रांट रिव्यू ग्रांट करने से पहले अगर एप्लीकेशन ग्रांट होनी चाहिए, कोर्ट को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड, इस इन सारे प्रोसीजर से पहले कोर्ट को नोटिस देना है अपोजिट पार्टी को, अपोजिट पार्टी विल ऑब्वियसली जिसके फेवर में जजमेंट है विल सपोर्ट द जजमेंट और ऑर्डर। सिमिलरली इफ़ यू आर द एप्लीकेंट, तो आप तो ये और आप इस ग्राउंड पे ला रहे हैं मैटर दैट यू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू मैटर और एविडेंस जो आपकी नॉलेज में नहीं था, या यू कुडंट हैव अड्यूस्ड अर्लियर हैड यू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस, तब आपको स्ट्रिक्टली प्रूव करना होगा ये एलिगेशंस, उसके बाद ही एप्लीकेशन ग्रांट होगी। ठीक है, किस ग्राउंड के लिए है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, उस ग्राउंड के लिए बात हो रही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं रूल 5 पे, वो कहता है वेयर जजेस और द जजेस और एनी वन ऑफ द जजेस हु पास द डिक्री और मेड द ऑर्डर ऑफ रिव्यू of which it is applied for continues or continued attached to the court at the time when the application for review is presented and is not or are not precluded by absence or other cause for a period of 6 months next after the application from considering the decree or order to which the application refers, such judge or judges or any of them shall hear the application and no other judge or judges of the court shall hear the same. Principle simple है, simple ये है कि जिस जज ने जजमेंट ग्रांट किया ऑर्डिनरली उसी जज को रिव्यू जाना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा मैटर पता है। नया जज आएगा तो नया जज कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए जो जिस जज ने ट्रायल कंडक्ट करवाया, जिस जज ने जजमेंट पास किया है, ही शुड बी द वन हु शुड हियर द एप्लीकेशन इफ ही इज स्टिल अटैच्ड टू द कोर्ट। अगर उसका ट्रांसफर हो गया है, प्रमोशन हो गया, या ही हैज़ रिटायर्ड और डाइड, तब तो ऑब्वियसली वो जज नहीं सुन सकता, तब ऐसी केस में दूसरा जज सुनेगा। लेकिन इफ दैट जज इज अवेलेबल and he's still attached to that court which passed the judgment or order as the case may be, then he will be the one to hear the review application. Rule 6 says application where rejected, where the application for review is heard by more than one judge and the court is equally divided, the application shall be rejected. Then it says where there is a majority, decision shall be according to the opinion of majority. अब आगे चलते हैं। रूल 6 में एलैबोरेट करने के लिए कुछ है नहीं रूल 6 से, लेकिन बेसिकली आपको यही पता चलता है कि रिव्यू को ग्रांट नहीं करना चाहिए ऑर्डिनरली, तभी व्हेन इट इज़ इक्वली डिवाइडेड तो मैटर थर्ड जज के पास नहीं जा रहा है जैसे ऑर्डिनरली जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर दोनों जजेस डिवाइडेड हैं देन द रिव्यू शैल नॉट बी ग्रांटेड। ठीक है, अब आते हैं रूल 7 पे, वो कहता है ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अवेलेबल, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन शैल नॉट बी अवेलेबल, but an order granting an application may be objected to at once by an appeal from the order granting the application or in an appeal from the decree or order finally passed or made in the suit. Subrule 2 reads, where the application has been rejected in the consequence of failure of the applicant to appear,
he may apply for an order to have the rejected application restored to file, and where it is proved to the satisfaction of the court that he was prevented by the sufficient cause from appearing when the application was called for hearing, the court shall order it to be restored to file upon such terms as to cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for hearing the same. अब ये आपको पता है sufficient cause को लेके क्या है. अगर appear नहीं हो पाया because he failed to appear, default of appearance की वजह से, तो sufficient cause में क्या क्या चीज़ें आता है मैं order 9 में ही mainly आपको बता चुका हूँ. Subrule 3 reads, no order shall be made under Subrule 2 unless the notice of the application has been served to the opposite party. Understandable? Rule 8 reads, where the application for review is granted, a note thereof shall be made in the register, and the court may at once rehear the case or make such order in regard to the rehearing as it thinks fit. Rule 9 reads, no application to review an order made on application for a review or decree or order passed or made in review shall be entertained. मतलब review का review allow नहीं हो सकता. You cannot apply for review of an review. ठीक है, आपने रिव्यू के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, अब आप उस ऑर्डर के रिव्यू के लिए नहीं अप्लाई कर सकते. सो रिव्यू ऑफ रिव्यू इज नॉट अलाउड. ठीक है, रिव्यू एप्लीकेशन का एक तरीके से अगर डिस्पोज ऑफ हो गई इन वन वे और द अदर, देन उसका रिव्यू इज नॉट अलाउड. अब एक छोटा सा पॉइंट ये याद रखिएगा, डिसीजन ऑन द रिव्यू इज सेट टू बी एन इशू डिसाइडेड, और इस पर रेस जुडिकाटा लग जाता है. ठीक है, तो सब्सिक्वेंट पिटिशन ऑन द सेम ग्राउंड इज नॉट मेंटेनेबल. इस पर रेस जुडिकाटा भी लग जाएगा क्योंकि ये इशू इज वंस एंड फाइनली डिसाइडेड. फाइनल ऑर्डर होता है ये, तो इट इज सिंस इट इज फाइनली डिसाइडेड देन इट वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. जो आपका रूल 9 है तो स्पेसिफिकली कह रहा है कि नो एप्लीकेशन टू रिव्यू एन ऑर्डर मेड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और डिक्री और ऑर्डर पास्ड और मेड ऑन रिव्यू शैल बी एंटरटेन. मतलब रिव्यू का रिव्यू इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इट इज़ फेयरली सिंपल. तो ये हो गया आपका कंसेप्चुअल पॉइंट हो गया, रिव्यू का पॉइंट हो गया. सो रिव्यू आपका ख़त्म. अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. आपको सेक्शन 114 रेड विद ऑर्डर 47 और स्पेसिफिकली आपको रूल 1 पे ध्यान देना है. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसीडिंग है किस नेचर की है, किन ग्राउंड्स पे होती है, क्या क्या इसकी रिक्विजिट कंडीशंस हैं, इसको लेके आपको बहुत क्लियर रहना है. ये आपने कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. जो लोग प्रैक्टिस के लिए इसको चाहते हैं उनको इस रिव्यू का बेसिक नेचर का ध्यान रखना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि भाई किन सिचुएशन में रिव्यू के लिए अप्लाई करना चाहिए, किन सिचुएशंस के लिए नहीं. टेक्निकली स्पीकिंग जो अपील है इट इज़ मच बेटर रेमेडी देन रिव्यू. लेकिन जब अपील लाई नहीं करती तो आपको रिव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. थर्ड कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि कहाँ पे अगर आप रिव्यू पहले फाइल कर देते हैं और उसके बाद आप अपील फाइल करते हैं देन दैट कोर्स इज़ ओपन टू यू. ठीक है, ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए उतना नहीं है. जानना चाहते हैं तो जान लीजिएगा, वरना आई डोंट थिंक एनीबडी विल आस्क यू दैट. पूछता है तो फिर आप उसका आंसर जानते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो.